माइंडफुलनेस लाने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट आवर थॉट्स, और जो हम आज सुनेंगे और अपने साथ ले जाएंगे उसको याद रखना। और माइंडफुलनेस के लिए हम लोग एक मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे, एंड सो दैट यू कैन मेडिटेट. So your time starts now. Close your eyes, please. All right. And last is Madhu, U for Urja, or E for energy. So should we do the physical exercises, Jela? Yes, sir. A we do little that. bit you can start. All right. Yes. Okay, so let's get some energy. Just watch me do the physical exercises. 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3. I can't see anyone clap. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, oh, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up here, third exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी से हमको 7, फोन करना 8, था 9, 10. कल Next. करेंगे 1, 2, जरूरी नहीं है 3, 4, 5, अभी मर्जी नहीं है 7, 8, 9, 10. क्या मैं देखूं 1, क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch your arms and make a cup like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one, the wrist. Wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Other hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll do the Brahmari. You can just put 4 fingers like this. Close with the second one. Your thumb on the ear. And make a humming sound. The purity chai. Second time. One last time. That's it. So we are finished with our physical exercises to get some energy. And now the positive affirmation. Very important. Please. Sabse important. And repeat after me. I am the happiest person in the universe. I am the happiest person in the universe. I am the healthiest person in the universe. I am the healthiest person in the universe. I am the youngest person in the universe. I am the youngest person in the universe. I am the luckiest person in the universe. I am the luckiest person in the universe. Every day and in every way. Every day and every way. I am getting better, better, I'm and better. getting better, better, and better every day. Thank you. So that is what it is. So we
finished the introduction, we finished the meet and greet, and now we have a special guest today, and that's Gurpinder Kaur. She is a homeopathic doctor and a yoga guide, a counselor and meditative coach, founder of Health and Happiness. We did not miss our friend today. Huh? Otherwise, he's got the poster so beautifully done. Yes, he always Yes. gets his poster. He is busy today. Okay, so over to you, Jailam. You are the boss now, and take us through what we have in store today. Yes. Actually, here is Dr. Gurpinder Kaur. She is an experienced homeopathic doctor, as Yashpal sir just said. She is deeply committed to serving humanity and expanding opportunities to heal lives every day. Yes, globally she is doing it. She's worked in rural areas also as a charitable health facilitator. She is benefiting many women in their body alignment, Not helping audible, with madam. gastric problems, Little louder. stress management and stuff. And here she is today lending her time with us and giving us valuable, very valuable time to have a good time. So, Dr. Gurupinder Kaur, you can please resume session. Thank you all. So And, you will have about 35 to 40 minutes, and then there will be Q&A. So anyone who has to ask any question can put it in the chat box, and we will come to that later, unless it is critical and important to all of us. Is that all right, Gurpinder? yeah, yes, sir, definitely. Thank you. Please take over. We are, Yeah. yes, we are here just to brush up. You know everything and you are doing so well. So there is, यहाँ पे तो जैसे होता है ना, cherry on cake के लिए सब लोग आते हैं. You all are too smart and perfect. So जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन हो गई है, हिंदी इज ओके ना, हिंदी एंड Yeah. इंग्लिश में. Yeah, Yes. Hindi, English, fine. Yes. English. Yes. Okay. So let's start with ourselves. First of all, what we say that your destiny is in your hand. और इस पे बहुत अच्छी सी कहावत है हिंदी में, और हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छी कहावत है. वो क्या है, कौन बताएगा? Your destiny is in your own hand. बहुत अच्छी है. छोटे होते अब जो जैसे I am also 55. So everybody of my age or senior than me, they easily correlate that हम क्या बोलते हैं, मुहावरा या कहावत. क्या है वो? जब तक जिंदा है जब तक जवान है. नहीं, Your destiny is in your hand. ये तो इंग्लिश का तो बड़ा आपको very good. आपकी मुट्ठी में. Yes, yes. अपना हाथ जगन्नाथ. तो ये जो हाथों से हम अपना काम कर लेते हैं सारा दिन, अगर हम देखें कि जो 5 सेंसेस और 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 वर्किंग जो कर्म इंद्रियां हैं, उनमें जैसे सेंस ऑर्गन्स में हमारे सिर्फ कहते हैं कि आईज हमारी मेन सेंस ऑर्गन है, एंड जो हैंड्स हैं हमारे, वो कर्म इंद्रियों में सबसे बड़े हैं. क्योंकि अगर हाथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं. हाथ हमारे कहाँ कहाँ, जब बच्चों का सेशन लेते हैं तो वी इसी के यहाँ सबसे ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये. लेकिन अगर बोलते हैं कि हाथों के आप बेनिफिट्स लिखो, तो हाथों से हम वी डोंट एक्नॉलेज दीज हैंड्स कि ये ऐसे हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं एंड वी फील लिटिल बिट डिस्टर्ब, वो इच होना, वो डीप स्लीप में भी आपका हाथ राइट जगह पे पहुंच जाता है. ठंड लगी तो वो ब्लैंकेट ऊपर को हाथों से ही आता है, और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दे आर सर्विंग एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, दे आर द मेन वर्किंग ऑर्गन इन अवर लाइफ. सो जब हमारी एज के अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले हमारा जो हैंड मूवमेंट्स हैं, ग्रिप है, वो सब धीरे धीरे वीक होने लगता है. इफ वी कीप आवर हैंड्स, yes, along with the age,
और जैसा हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स और उनकी वजह से हम एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए अवेयर हुए हैं. यस, एवरीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू एज देयर आर सटल चेंजेस इन आवर बॉडी. एंड सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेंथन किस चीज को करना है? अपनी लिम्स को, डिस्टल पार्ट ऑफ पैर और हाथ. और हाथों को तो हद से ज्यादा. पैर अगर किसी समय होता है, वी कैन टेक स्पोर्ट, हम छड़ी ले सकते हैं. आजकल कितने कितने अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं. लेकिन अगर हाथ स्ट्रांग हैं, जब कुछ भी एंग्जाइटी, वीकनेस आनी शुरू होती है, तो आप देखो कि हाथों की मूवमेंट्स ही कंप्रोमाइज होती हैं, चैलेंज होती हैं. सो सबसे पहले रबर बैंड्स में से जो आपके जो लेडीज घर में पहनती हैं वो भी चलेगा, जिनके पास स्पेशलाइज्ड होते हैं, रबर बैंड, मोटा छोटा एनीथिंग, और रबर्स तो इसलिए रबर अब बैंड, दिखा दिए हैं, तो कुछ भी आप उठा के ला सकते हो. एवरी ऑप्शन इज देयर. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने हाथ की जो फाइनर मूवमेंट्स हैं, फाइनर ट्यूनिंग जो होती है हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स को, और स्मॉल हमारे जो लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, रिस्ट से लेके आगे की एडवांस एक्सरसाइजेस होती हैं, जहां पे हम पूरा, आप देखोगे जिम जो जाते हैं वहां पे भी रिस्ट, क्योंकि उन्होंने उठाना होता है, तो ये सब चीजें होती हैं. लेकिन सबसे पहले छोटे से सिंपल से, जो कि आपको बड़ी चीज की जरूरत नहीं, आप टीवी देख रहे हो, जस्ट यू हैव टू ग्रैब अ रबर बैंड, और ये मैंने 2 ले लिए, सो दैट जितनी एक स्ट्रेच बड़ा आप रबर बैंड बियर दे दो. कर, यस, जितनी स्ट्रेच आप बियर कर सको, तो इसको ऐसे डाल लेना है. और फाइनर मूवमेंट्स आपको, आपने स्ट्रेच करना है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, और थोड़ा सा वो आप करेंगे तो एक्सपैंड क्लोज, एक्सपैंड क्लोज. आप देखोगे इसको ऐसे रखे, अगर ऐसे रखना मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी रख सकते हो. ट्राई टू ओपन एज मच एज यू कैन. आप देखोगे इसके साथ अगर करेंगे, यस यशपाल सर, आपके पास रबर बैंड नहीं आया? नहीं, मैं उठ भी नहीं सकता हूँ. चलो एनी हाउ मैं आपको बताती हूँ. तो उसके लिए कैसे करना है, इट्स जस्ट फ्री. उसके लिए कैसे करना है कि हमने अपनी उंगलियों को ऐसे खोलना है कि जैसे somebody, पूरा पूरा जैसे गुस्से में पूरा खोलना है, और देन स्लोली टाइट इट. ऐसे ऐसे खोलना है. ये मूवमेंट रहेगी कि यू आर कॉन्शियसली पूरा इसको स्ट्रेच कर रहे हो जैसे, और फिर ऐसे इसको क्लोज कर रहे हो, ये आएगा. तो 10 काउंट्स ये करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. जो लोग बिना रबर बैंड के करेंगे, आप देखोगे कि इतना करते ही आपके यहां से यहां तक अगर टायरनेस फील हो रही है, लिटिल बिट स्ट्रेस आ रहा है, दैट मीन्स फाइनर मसल्स ऑफ दिस रीजन आर इजीली टारगेटिंग. एंड वही हमारा टारगेट है कि हमने उनको इरिटेट करना है. कहते हैं जिस चीज को ठीक करना होता है ना, जस्ट गिव पेन, पेन के बाद ही प्लेयर आती है. तो वो थोड़ा सा पेन अगर हम बियर करेंगे, और जो रबर बैंड के बिना करेंगे, उनको पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा उंगलियां ऐसे पीछे की तरफ जानी चाहिए, जैसे वो गुस्सा आते हुए, जहां में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, मूवीज में देखते हैं कि या वो वाला ऐसे पूरा. और देन उसको अपनी बॉडी स्ट्रेंथ से, देखिए रबर बैंड है, दीज आर द एक्सटर्नल स्पोर्ट्स, अदरवाइज योर बॉडी स्ट्रेंथ इज द पावर. इसको धी ऐसे लेके जाना है, और स्लोली, ये भी हम 10 टाइम्स करेंगे. 4 5 6, पूरा पूरा उंगलियां आप अपनी स्ट्रेंथ से उनको स्ट्रेच करोगे, और स्लोली स्लोली जैसे कोई रोकता है, विद सेल्फ रेजिस्टेंस यू हैव टू पुट इट बैक. 7 8 9 and 10. So this is the हमारा जो, अगर दोनों को एक साथ करना है तो कोई भी रबर बैंड लेंगे, ऐसे लोटस की फ्लावर की शेप में इसको लेंगे,
जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे रिस्ट ज्वाइन कर लेनी है और इसको एक लोटस फ्लावर की तरह खोल के रखना है। काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो फिर रिलीज कर देना, जैसे बड बन गई। देन अगेन लोटस। यस, और जो रबड़ बैंड के बिना कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, इसको ऐसे ऐसे। जस्ट मेक श्योर योर रिस्ट यहां से मणिबद्ध जो पॉइंट होता है जहां पे हम मौली बांधते हैं, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है। पिंकी को पिंकी के साथ, थंब को थंब के साथ, इन दिस वे, एंड स्ट्रेच इट आउट, स्ट्रेच इट आउट एंड काउंट 10। और 10 काउंट कैसे करना है, कॉन्शियसली रहना है। और फिर कभी हम बैक काउंटिंग इसलिए करनी है कि हम अवेयर रह सके, हम वी कैन बी हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट। कि हमने यहाँ लगा लिया और मन में सोच रहे हैं, ओ बॉल किस लिए मंगवाई थी मैडम ने, है ना, या अभी रबड़ बैंड नहीं मिला, मेरा तो काम ऐसे हो, ऐसे नहीं। जस्ट काउंट इन योर माइंड 10 बैक, 10, 9, 8। क्योंकि जब हम बैक काउंटिंग करेंगे, इट विल बूस्ट योर मेमोरी एंड इट विल कीप यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। और यहाँ पे लगे कि 10 बैक काउंट करते करते गड़बड़ होगी, वहां से फिर से स्टार्ट करना होता है। सो इन दिस वे वी गेट। यस, नाउ रब योर पाम्स अगेन, क्योंकि इतना स्ट्रेच हुआ है। एंड नाउ यहां से अपने हाथ को ऐसे ले लेना है, जैसे सर ऐसे कर रहे थे वो तो हम करेंगे, लेकिन यहां से लेके पूरा इसको स्लोली आपने अपने यहां तक लेके आना है। 1, फिर से नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि लिम्फ ड्रेन करना है। वी कांट डू मूवमेंट बैक, सीधा लाके ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि लिम्फ हमारी बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड है जहां पे हमारी इम्यूनिटी के लिए सारे वाइट सेल्स और एक तरह से डिफेंसिव सिस्टम है। तो लिम्फ ड्रेनेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड तो हमारा चलता रहता है, वी जस्ट थिंक अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, वी नेवर थिंक अबाउट लिम्फ वेसल्स, क्योंकि इनका एक ही क्लोज एंड होता है। तो इनको कॉन्शियसली, वो जो टैपिंग भी है सर ऐसे करवा रहे थे, दैट इज फॉर योर लिम्फ मूवमेंट, सो दैट। और वो उसका एक्चुअली जो होता है, यहाँ पे पहले हम मसाज करेंगे 3 टाइम। यहां तक लेके आओगे, बिल्कुल आर्म आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी विद योर बॉडी रेजिस्टेंस इतनी फर्म कि मैं जैसे ऐसे मार रही हूं तो ये डाउन नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आप खुद देखिए कि आपकी आर्म में स्ट्रेच पूरा है कि नहीं। यहां से नीचे से ऊपर की ओर आओ, ऑन द सेकेंड साइड इट शुड बी पूरा फर्म, पूरा फर्म। यहां से ऐसे लेना है और ऑल द वे अप टू शोल्डर ऐसे लेना है। आई हैव टू कीप माई सेल्फ ऑन द गैलरी व्यू। यस, यू कैन सी मी ना ऑन योर फुल स्क्रीन। यस, ठीक है। और यहाँ पे मैं गैलरी व्यू में आप लोगों को देखती रहूंगी। यस, राज चौहान जी, मैम बाजू को ऐसे नहीं करना। आई एम सेइंग कीप इट स्ट्रेट, कीप इट स्ट्रेट। उठाइए इसको, बाजू को ऊपर को उठाइए। यस, अदरवाइज नो, वी आर डूइंग, ये सिंपल मसाज नहीं कर रहे, वी आर टारगेटिंग आवर लिम्फ सर्कुलेशन। सो बिल्कुल स्ट्रेट, इतनी स्ट्रेट रहेगी कि आप देखिए अगर इस पे हाथ लगाओगे तो ये डाउन नहीं जानी चाहिए। इट शुड बी ऑल द वे 90 एंगल, 90 डिग्री टू योर बॉडी। सो ऐसे करेंगे। और अभी आ जाएंगे, सर ने जैसे पहले ही करवा दिया, टैपिंग। टैपिंग हाथ की शुरू करेंगे हम, यहां से शुरू करेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे इंच 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 आगे प्रोसीड करना है और अपने आप को शाबाशी देते हुए अपने यहां तक लेके जाना है, टिल यहां से आपका जो लिम्फ है फिर वो लिम्फ चैनल्स में ड्रेन होता है। इन दिस एक साइड, फिर दूसरी साइड, ऐसे ही बिल्कुल फिंगर टिप्स से शुरू करना है, टैप करना।
यस, वैक्यूम हमें क्रिएट करना है, वो हम इस तरफ करेंगे। तो ऐसे करते करते बिल्कुल इंच बाय इंच, जो नहीं कर पाते हम उनको बोलते हैं 20 काउंट करिए, ताकि 20 तक आप यहां पहुंच सको। वाई 20 काउंट? क्योंकि स्लोली यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। यहां पे आ गया, ठीक। और अभी आ गया जो सीधे करके सर ने बोला था, इन सेम वे यहां से शुरू करेंगे, यहां से करते 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 यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे भी अपने पूरा ये आ जाता है पूरा यहां तक। ये ऑल द वे हमने अपने लिम्फ को जो एक्सरसाइज करी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं चाहे छोटी बड़ी, तो लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज होता है, तभी हमें वो स्ट्रेच, पेन और वो एक स्ट्रेन फील होती है। तो उसको ड्रेन भी करना है, तो ड्रेन उसी के बाद ही होता है कि स्ट्रेचेस एंड टैपिंग्स वी डू। तो दीज आर द इफेक्टिव टैपिंग्स। और ताली वाला तो सबने देखा ही है, टैपिंग जैसे वो खड़े होके, वो सब इसीलिए है कि आपका जो लिम्फ ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो जाए, बिकॉज लिम्फ चैनल्स मस्ट बी क्लीन, अदरवाइज इम्यूनिटी तभी चैलेंज होती है। तो अब यहां तक तो आ गए हम, यहां से करके स्ट्रेच किया अपने हाथों से, अपने जगन्नाथ लिए अपने हाथ में, अपने जगन्नाथ से काम भी करवाया। जैसे वो धन्ना भगत था ना, उसने क्या ठाकुर जी को पकड़ के काम करवाया था। तो इसी तरह से हमें अपने जगन्नाथ को पकड़ना है एंड लेट डू फॉर योर सेल्फ, ताकि हम अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपने हाथों का यूज ले सके। वी शुड बी इंडिपेंडेंट टिल अवर लास्ट ब्रेथ। सो यहां तक आ गया। अब यहां से ड्रेन कैसे करना है? तो अपोजिट हैंड से ऐसे पूरी ग्रिप बनानी है, हुक टाइप। पीछे का जो आपका हिस्सा है जहां पे हम चोटी बनाते हैं, वहां से यहां से वहां से आपने इस हुक के साथ लेके आना है और यहां तक लाके छोड़ना है। 1, पीछे से लेना है, नेक से। आप देखोगे अपोजिट हैंड से, अपोजिट हैंड से यहां से लोगे। slowly feel that what is accumulated here is completely draining into its proper channel with this affirmation। ऐसे करके 3 बार, फिर अपोजिट साइड से ऐसे करके लाएंगे। यस। और जब यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां पे हमें एक फिस्ट बनानी है, फिस्ट बनानी है। और अपोजिट हैंड से, जैसे राइट है तो लेफ्ट पे टैप करना है। यस, ऑल इज वेल। मतलब जितना मैंने मेहनत करी मेरे जगन्नाथ ने, वो ड्रेन हो रहा है। टैप करेंगे तो इट गोज इनटू द मेजर वेसल्स। ठीक है, 5 to 6 टाइम टैपिंग। ईएफटी में हम देखते हैं वो वहां पे मरमस भी होते हैं। तो ये आपको एक डिप्रेशन में या किसी तरह की भी, अगर आप किसी सोच में स्टक हो गए हो, तो वी ऑलवेज आस्क देम कि यस ऑल इज वेल। आमिर खान ने ऐसे नहीं किया था ऑल इज वेल, वो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि ऑल इज वेल, वी कैन डू। यस, विद अपोजिट हैंड ऑन द सेम। ये प्लेस कौन सी होती है? जो हमारी ये कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन से डायगोनल आप जब आर्म पिट की तरफ जाते हो तो उसके सेंटर में थोड़ा सा टैप करना होता है, जहां पे वो आपकी लिम्फ ड्रेनेज वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अभी सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो वो लिम्फ के थ्रू ही बॉडी में ट्रेवल करती है। जो भी मेटास्टेसिस होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है। तो इसलिए अपने लिम्फ चैनल्स को ओपन रखना चाहिए हमेशा हमें। तो अभी बाजू ऊपर उठा लेनी है, हाथ खुला, एंड मेक अ कप, पूरी तरह वैक्यूम और अपने आर्म पिट पे अच्छे से 20 बैक, 20 बैक। कौन काउंट करेगा? एक जन डेलीगेट करिए, मजा आएगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, स्ट्रेट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1। थैंक यू चौहान Mastrena. साहब। बाजू मतलब आर्म आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। देखिए, जो जो हमने फ्लूइड्स यहाँ क्रिएट हो गए वो तभी आएंगे जब हम सीधा रखेंगे। एंड वी आर क्रिएटिंग अ वैक्यूम
just like a vacuum cleaner, so that they can come back to the proper channel. So पूरी तरह सीधी रखनी है ऊपर बाजू. Yes. Now other side, another one person, please help us for the counting, back counting. Leela ma'am, Yes, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very you. good. Now give a good gentle rotation to your shoulders, backward and forward. Yeah. Thank you. ये तो हो गया हमारे हाथों का सर्कुलेशन, स्ट्रेंथनिंग हमारी हो गई. और अभी हमारी जो सबसे मेजर कर्म इंद्री है पैर और फेशिया, उसकी एक प्राइमरी, क्योंकि अवर बॉडी आपने देखा होगा फेशिया, आई थिंक एवरीबडी नो व्हाट इज फेशिया. Oh, no, please explain. या इट्स अ नॉन वेज जब हम लेने जाते हैं या Ma'am, before you proceed, Yeah. this shoulder rotation that you said, has it only to be in front or should it go behind also? नहीं, Both sides. backward, it's totally up to your choice, just to relax. So it can either be Backward or and forward. start. Yeah, ma'am, your sound is a little bit low. yeah, you Yes, have to yes, come I- closer to the mic. Geeta, come closer to the mic. Either go forward or backward, is it? Both we have to do. First, 1 or 2 circle in one direction, then to the opposite direction. Both direction we have to do. It's not any foundation that you have to go backward first. Both we have to do clockwise Okay. and anti-clockwise. Thank you. Understood. Yeah. Yeah. So after this, we are going to use this tennis ball. ठीक है, तो हाथों का यूज हुआ, लिम्स. यस, तो पहले तो हाथों में लेके ही आप, जो हमारा हैंड का जो सेंटर होता है, अगर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो भी जानते हैं या एनर्जी मेरिडियन जानते हैं, इट बिलोंग्स टू अवर सोलर प्लेक्सस. तो जो सोलर प्लेक्सस है, इसको हम, आप देखोगे कि इसको, वो स्ट्रेस बॉल तो सब लोग करते हैं, वो ग्लूई स्पॉन्जी होती है, बट इट शुड बी लिटिल बिट हार्ड. और मे बी यू कैन टेक के एक्यूप्रेशर बॉल जो होती है वो भी आप ले सकते हो फॉर दिस. आप ऐसे करके, ठीक है जी. इसमें भी पहले एक तरफ घुमाया, फिर अपोजिट तरफ, ठीक है, ऐसे करके. और फिर आप हैंड की जो बैक साइड है, यस, बैक एंड हाँ जी, क्यों ठीक नहीं? प्रॉब्लम तो देती कोई? नहीं। हेलो, ये क्या है? आप म्यूट करिए सब लोग प्लीज. कर दिया, ठीक है. और अभी हम चलेंगे हमारे पैरों की तरफ, ठीक है. पैरों में कैसे करना है, इफ यू कैन सी विजुअलाइज. यस, आप जहां बैठे हो, मैं एक बार ऑफ करती हूँ इफेक्ट्स. जहां पे भी बैठे हो आप, उसको चेयर पे बैठ जाना है. एक लेग को वो करके आपने चेयर पे रख लेना है, ऐसे करके. दूसरी अदर साइड, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे अपने इनर एंकल पे इसको रखना है और मसाज करनी है, मसाज करनी है. Visible, everybody? Yes. And you are doing along with this, please keep Yes. on doing. That's the benefit of these sessions. अगर हम सिर्फ देखते ही रहेंगे, जैसे खाना बना लिया, पका भी लिया, सर्व भी कर दिया, और डाइनिंग में प्लेटर सामने रख के बैठे रहेंगे, इट विल सर्व नो पर्पस. और ऐसे करके फिर वही जैसे हाथ का था, तो नीचे
पैर के नीचे इसको रोटेट करना है। तो फेशिया का जो मैं बता रही थी, एक ऐसा अनसीन बैंड होता है, इलास्टिक बैंड, जो हमारे पैरों से शुरू होता है, वो पूरी हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। दैट इज वन कनेक्टिव टिश्यू बैंड, जो पूरे सिर तक जाता है, कि आपके अगर यहाँ पे स्ट्रेच आता है तो वो पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को लिमिटेशन दे देता है। यस, मास्टर्स कीप योर सेल्फ म्यूट प्लीज, कीप योर सेल्फ म्यूट, क्योंकि ऐसे हम ढूंढ नहीं पाएंगे पूरे उसमें। तो आप देखिए, जब इसको आप सर्कुलर मोशन में, फिर अदर साइड इसको पूरे टाइट से, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जो हाथों का हमने ऐसे टाइम वेस्ट किया था ना, इसको टाइम वेस्ट बोल सकते हैं, या स्मार्ट वर्क, कि एक हाथ एक पैर को दोनों मिलके काम करेंगे, और दोनों ही, वो हो गया ना कि साथी हाथ बढ़ाना। पैर की मसाज के लिए हमने हाथ यूज किया, तो दोनों का ही काम हो रहा है। इसको बिगर मूवमेंट्स, थोड़ी सी हार्ड होगी बॉल, तो इट विल बी मोर बेटर, इट विल बी मोर बेटर। अगर एक्यूप्रेशर वाली होगी तो इससे क्या है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो फेशिया और आईटी बैंड जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा, जो उसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, उसमें नॉट्स आ जाती है, जैसे मसल्स में हमारे होता है ना, नॉट्स आ जाती हैं। तो बॉल की एक्सरसाइज, हम उनको जो जिम या एक्सरसाइज हैवी करते हैं या हैवी एक्टिविटीज, तो बॉल के साथ पूरा हमारा एक प्रोटोकॉल है कि बॉल के साथ कैसे नीज के नीचे इसकी यूज करके हम मसल नॉट्स या नर्व्स में जो नॉट्स आ जाती हैं वो रिमूव करते हैं। तो जस्ट आज के लिए यही कि ये मसाज आपकी हो रही है। और एक चीज आएगी यहाँ पे कि खड़े हो जाना है, पहले आप देख लीजिए, खड़े हो जाना है, कीप दैट बॉल। कोई समर्थ पे है कोई डॉक्टर? यस, तो इसको ऐसे नीचे रख लेना है, चेयर की हेल्प से खड़े हो जाना है, चेयर की हेल्प से खड़े हो जाना है, और पैर के नीचे से इसको रोटेशन देनी है। यस, झेलम जी, इज इट विजिबल? Yes. यस, तो आपने दोनों पैर सपोर्ट रखनी है, चेयर की सपोर्ट आपने रखनी है, साइड लेके खड़े हो जाना है। और इसके लिए थोड़ी सी हार्ड बॉल चाहिए। आप देखोगे कि जैसे ही ये 20 क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशंस दोगे, एंड यू विल फील के वो वहां से उसकी मूवमेंट्स, तो ऐसे ही दूसरे पैर के नीचे हार्ड बॉल के साथ, ये पैर के नीचे वाला, ये माइंड में आ गया, मैंने इमीडिएट आपको इसीलिए डेमो दे दिया, लेकिन हार्ड बॉल होनी चाहिए। तो यू विल फील द डिफरेंस आपके अपने पैर को, और इसको बहुत रिलैक्स फील होगा। जब भी लगे कि टायर्ड हो रहे हो और वो कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस। तो इस तरह से ये वाली बॉल दिखने में लगती है, घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। और वन थिंग, चलिए एक और माइंड में आया, तो वो भी आपको बता ही देती हूँ कि इसको हमने यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और अपने एल्बो का जो एंगल है वहां रखना है, और इसको जस्ट हल्का सा ऐसे, ये भी आपके मसल्स को और नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। धीरे धीरे होता है कि वी टेल द पेशेंट टू टच देयर, ऐसे करके। तो दूसरी तरफ भी इसको बॉल को अच्छे से प्लेस कर लेना है, और ट्राई टू मूव इट, ट्राई टू मूव इट। यस, यस, ऐसे करके ट्राई टू टच योर शोल्डर, शोल्डर ज्वाइंट, ऐसे। सो ये हो गया हमारा, बॉल भी यूज हो गई, बॉल भी यूज हो गई, रबड़ बैंड्स भी यूज हो गए, और अभी है हमारे पास यस फाइनर मूवमेंट्स हैं जो, और फेशिया जो मैं आपको बता रही थी। फेशिया क्या होता है? इट्स जैसे हमारी स्किन है, स्किन मसल्स, जब भी जो अगर मेडिकल फील्ड से हैं, दे नो कि जब बॉडी को, या जिन्होंने जो नॉन वेज देखा है मार्केट में या कहीं पे भी, उसको क्लीन करते हैं, एक वाइट थिन पेपर टाइप लेयर होती है, जो थोड़ी सी हमें डिस्गस्टिंग फील होता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऊपर से
वो होता है फेशिया, जो आपकी पूरी बॉडी की इनर, और अगर फेशिया कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, हमें लगेगा कि कई बार मूवमेंट्स लिमिटेड हो गई है, लेकिन हमें लगता है कि ना रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, नथिंग, क्योंकि वो आपका फेशिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव पैटर्न्स। आपका लिम्फ्स अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा, आपके मसल्स अच्छे से टोन अप नहीं हो रहे, तो फेशिया जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है तो आपकी, आप देखोगे कि सडनली कई बार मूवमेंट्स हमारी किसी पार्ट की लिमिटेड हो जाती हैं। तो वो फेशिया है, वो जो एक कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, आउटर कवरिंग, जैसे जो एग भी पील करते हैं तो एक वो थोड़ा सा थिन इलास्टिक लेयर जो मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज फेशिया। तो फेशिया के लिए हम, फेशिया आजकल बड़े ट्रेंड में है, यू कैन लुक, तो फेशिया रिलीज, लिम्फ रिलीज, दीज आर द न्यू मॉडर्न एज, कि आपको हैवी जिम करने का, हैवी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ट्यून विद योर एसेंशियल शीट्स ऑफ द एंड एसेंशियल जो फ्लो ऑफ द बॉडी है उसको, या थैंक यू। सो इसलिए हमें अभी देख फेशिया रहा की हूँ। मूवमेंट्स और वो सब चीजें हमें करनी है। तो अभी हमने फिजिकल बॉडी को तो कर लिया, अपने हाथों से अपने जगन्नाथ को आज जगाया और अपने आप के साथ सारा काम करवाया। तो दैट मस्ट बी ब्लेसफुल मोमेंट। एक स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, जैसे मैं कईयों के चेहरे पे देख रही हूँ, बाजू मैंने यार सीधा, मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपके साथ बाजू सीधा करने के लिए बोला, जस्ट यू हैव टू ऑल द वे स्ट्रेट अप योर आर्म अप, and if we are unable to do this, that means we have to do it again and again. So वो करके देखना है। छोटे होते होता था ना पीटी में हाथ ऐसे ही, तो आई थिंक जेलम जी डेली पीटी की क्लास ही होनी चाहिए, दैट विल बी सफिशिएंट। तो जो बचपन में होता था ना, सावधान विश्राम पीटी, दैट इज ऑल फॉर योर लिम्फ मूवमेंट्स एंड योर फेशिया मूवमेंट्स एंड फॉर द सिनर्जी बिटवीन योर मसल्स टेंडन्स। हम लोग बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं, लीवर का, फैट का, हार्ट का, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें ऑल जैसे होता है ना कि जिनका हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते कि दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी, ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उन चीजों का ही अगर ध्यान रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमारा सब पर्पस सर्व करेंगे। तो अभी ये सब हो गया, और अभी हम आ जाते हैं, पहले 2 मिनट के लिए इतना कुछ कर लिया, तो इनहेल, जस्ट डीप इनहेल, like as you smell the flower, deep inhale, smell the rose, and now blow out as you are blowing the candle. डीप इनहेल, अगर साउंड भी आती है इट्स ओके, एज वी आर, मतलब हम मजा ले रहे हैं कि बहुत अच्छी सी फुलवारी, या कहीं से हलवा, अगर किसी ने गुलाब नहीं महसूस करना तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, घर घर से हलवे की खुशबू आ रही है, तो वो सूंघिए अच्छे से। हाउ यू कैन इनहेल, मुंह बंद रखना है, और जब ब्लो करना है, जस्ट लाइक योर गेस्चर शुड बी लिटिल बिट डाउन, जैसे हम केक कैंडल ब्लो करते हैं। Just relax. Put your both hands on your thighs. 5 times inhale or exhale. Smell the rose. Blow the candle. Smell the rose. Blow the candle. Again. 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 Yeah, now just rub your palm अपनी अपनी पेस में, चाहे माइक ऑन है, 30 बैक काउंट ईच एंड एवरी वन हैव टू डू बाय योर ओन पेस। 30 से शुरू हो जाइए 1 तक, फास्ट। वी हैव टू मेक अवर, रब योर पाम, मेक इट वार्म। बच्चों के लिए जैसे होता है ना कि रब योर पाम, मेक इट वार्म, और पुट इट ऑन योर बेली बटन। जो लोग सीधे रख सकते हैं ऐसे ही, जिनको कोई वो नहीं है, यू कैन पुट इट अंडर योर शर्ट ऑन योर बेली बटन एंड गिव अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मसाज करनी है बेली के ऊपर, दोनों हाथ ऐसे रख लेने हैं और बेली के ऊपर मसाज करनी है।
यस, बेली के ऊपर मसाज करनी है, क्लॉकवाइज 10 राउंड एंड देन अदर साइड, अदर रोटेशन। नो वरी क्लॉकवाइज कहाँ पे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पहले कर लिया, नो वरी, बिकॉज आवर बेली बटन इज द सोर्स ऑफ आवर रोटेशन। So always try to do this. Rub your palm, make it warm, and make it the habit or a ritual while sleeping. Just अपनी बेली बटन को मसाज करके सोना है। कई लोगों को पता होगा ऑयल भी आप डाल सकते हो, लेकिन कनेक्ट विद सोर्स, इस सोर्स को याद करते हुए वी कैन कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स। सो in this way, now abhi time for the colors and pencils. तो पूरी So all are right handed or anybody left hand? बराक ओबामा कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है यहाँ पे, कोई है लेफ्ट हैंड? यू नो एक हिस्ट्री फैक्ट है कि 75% ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर लेफ्ट हैंडेड। So कोई नहीं है। I wonder कोई what नहीं। Trump is. Yeah. Trump So would my be like Gandhi, right and left, दोनों. Yeah, my father was he was a district medical officer in Ayurvedic department. He was left-handed and he just write down, अभी तक वो पोइट भी थे, उर्दू, फारसी, हिंदी, पंजाबी में लिखते थे, और उनकी बुक्स या जो हाथ से लिखा हुआ है, इट वाज जस्ट लाइक अ टाइपिंग, हैंड राइटिंग उनकी जस्ट लाइक टाइपिंग। सो इन दिस वे यस, फाइन क्वालिटीज बहुत होती हैं लेफ्ट वालों में। चलिए अभी यानी कि आपने अपना अपोजिट हैंड यूज करना है, दैट्स व्हाई आई आस्क। यानी कि राइट आप कर रहे हो, यस महारुख, यस आप लेफ्ट हैंड हो, आप म्यूट हो मैम, अनम्यूट करिए। चलो इसको यानी कि कहने का, कहानी कथा का मतलब ये है कि आपने अभी लेफ्ट हैंड में अपने अपोजिट हैंड में पेन पकड़ने हैं। आपको तो क्योंकि मेरा ना संडे हर बार नहीं जाना चलिए हो अभी पाता, म्यूट तो कर दीजिए सबको, वो रेगुलर जाती हैं। इफ पॉसिबल। नहीं पुष्पा जी वो नहीं। यस, सो हमने जो भी आपका आईज क्लोज करिए, जो भी अगर जिनके पास लिमिटेड वर्जन है वो तो वही यूज करेंगे, जिनके पास अगर ये मेरी तरह, मैं हमेशा स्केच पेन्स, पेंसिल्स, क्योंकि बॉल पेन्स भी अभी तो 12 कलर्स में आ गए हैं, तो हमेशा अपनी कलेक्शन ऐसी रखनी है आपके इस समय का। जस्ट थिंक दैट व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, what you are, how you are feeling right now। किसी किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा कि हमने तो सोचा था कुछ, ये कैसा निकला, या किसी को अच्छा भी लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट वो फीलिंग मन में रखते हुए एक कोई भी कलर उठाइए, एक कोई भी कलर उठाइए, ठीक है, अपने अपोजिट हैंड में लेना है और अपना नाम लिखना है, जैसा भी लिख सकते हो अपोजिट हैंड से, ठीक है। अपोजिट हैंड से आपने अपना नाम लिखना है, जैसे भी लिख पाओ, सीधे अक्षर, कोई जरूरी नहीं है कि लेटर्स की सीक्वेंस, आपको अपने नाम के पूरे लेटर्स पता होने चाहिए, वो चाहे आगे पीछे लिख दीजिए, ठीक है। डू इट अपोजिट हैंड से। जिनका डन हो गया, अभी उसी पेन को हमने राइट हैंड में पकड़ लेना है और ट्राई टू राइट डाउन योर नेम विद द फ्लो, कि जैसे वो एक होता है ना गीत, जिस मूड में आप हो उस तरह से, कुछ अलग करके, जैसे आप पहले लिखते थे वैसा नहीं, कुछ जो भी आपका नाम, जैसे मेरा गुरपिंदर है तो मैं जी को अगर ऐसे एक बढ़िया सी वो ट्विस्ट दे दूंगी, अपने अपने नाम को कितने प्यार से आप अपने आप को सेल्फ लव कितना करते हो, हाउ मच इट विल डिपेक्ट योर, जस्ट बाय पुटिंग योर नेम, कैसे कितने प्यार से अपना नाम लिखते हो, दैट विल शो के इन दिस वेरी मोमेंट हाउ यू आर फीलिंग नाउ। भूपेंद्र जी आपके पास 5 मिनट और है बस। जी जी जी, बस ये लास्ट है सर ये लास्ट एक्सरसाइज है।
तो शो करिए, जिसने लिख लिया दिखाइए। यस, फ्लो के साथ लिखा हुआ। यस यस, वेरी गुड। और अभी इसकी आगे की वीक की प्रैक्टिस इसी के साथ ही है कि धीरे धीरे कैसे करना है। ट्राई टू राइट डाउन, जैसे आपने जैसे आपने राइट हैंड से लिखा है अपोजिट हैंड से, वैसे ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको ट्राई करना है दिन में एक बार। एक तो आपकी फाइनर मूवमेंट्स, वो हाथ की ग्रिप वाली भी इंप्रूव होंगी, और एक आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को, बोथ हेमिस्फीयर्स है उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे। सो ये रहेगा, और इसके आगे भी होता है तो वो हम कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे कि आप इमोजी भी अपोजिट हैंड से, पेन पकड़ा है अगर 5 मिनट है तो अभी कलर चूज करिए, चेंज करिए, और इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं वो वाली इमोजी आप अपने अपोजिट हैंड से ड्रॉ करेंगे। इमोजी हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं तो मेरे मन में अभी पीकॉक आ रहा है, और यू ऑल आर जस्ट लाइक द ब्यूटीफुल feathers। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इस समय फील आ रहा है, जिस इमोशन के साथ, जिस भाव के साथ, इन दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट यू आर विद योर सेल्फ, नॉट विद ग्रुप, यू आर विद योर सेल्फ। तो उस इमोजी को, उस वर्ड को कोई फ्लावर बना सकते हो, लेकिन अपोजिट हैंड से बनाना है विद चॉइस ऑफ कलर। और जो जल्दी जल्दी बना लेंगे वो शेडिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी बनाया उसमें शेड दे सकते हो, उसमें रंग भर सकते हो, कुछ भी। हाँ, ये भी नहीं कि हमें दूसरों को प्लीज करना है, अगर गुस्सा आ रहा है गुस्से वाली इमोजी भी बना सकते हो, अगर किसी को पंच करने का मन कर रहा है कि इट्स यस, यू कैन डू विद दैट, बिकॉज इट्स ऑल रिलीज, connect and release with yourself. Thank you. This is your last exercise. और किसने क्या क्या इमोजी बनाई वो दिखा भी दो और बता भी दो। क्वेश्चन Yes. मैं पूछ सकती हूँ? जी? मेरे इस हाथ का ग्रिप नहीं चला गया है, स्पेशली ये जो बड़ी फिंगर है, ये पेन है और ऐसे ग्रिप नहीं है। हाँ, ये करने से हो जाएगा ठीक? यस मैम, मैं कभी टाइम लगेगा मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। मैं ऐसी डॉक्टर थी कि जो बिल्कुल ना एक परफेक्ट कोजी एटमॉस्फेयर में रहना सीख गई थी। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लेनी, क्विट कर दी, नहीं किया, मतलब, लेकिन यूनिवर्स ने, हम बोलते हैं परमात्मा ने मुझे मार मार के सिखाया। तो ये भी मैंने तब वो करना शुरू किया। मैं योगा गाइड थी, बट अप्लाइड योगा गाइड क्यों बनी? जब मेरी खुद के दोनों अंगूठे टूटे, कभी मेरे दोनों घुटने दोनों इंजर हुए, ठीक है ना, तो परमात्मा ने मुझे देता गया और मैं डिस्कवर करती गई आगे वेज। ये गुरविंदर, ये हाथ जो है ना, मतलब ये ग्रिप जो है ना, ये इतना होता है, ये नहीं है, पूरा नहीं रहेगा। यू हैव टू डू। और मसाज आपको तिल के तेल की करनी पड़ेगी, बिकॉज या कैस्टर ऑयल की, डीप तक वो उसकी मसाज। हम लोग क्या करते हैं ऐसे, नेवर डू दिस, एक ही डायरेक्शन में मसाज आपने करनी, नीचे से ऊपर, और नीचे ये से जो आपको सेंटर पॉइंट बताया है, इसको आप जीनी से या उससे भी कर सकते हो, बॉल से तो करना ही है। यू कैन गो एक्स्ट्रा माइल फॉर दैट। ओके, मतलब हाथ की वो भी तो नीचे ना एबिलिटी होनी चाहिए, वो कितना ले तो पाएगा। हाथ में नीचे रख के, नहीं तो रबर बैंड नहीं, आप ये स्टार्ट मैम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप सिर्फ एक बार ही कर पाओ, एक बार ही कर पाओ, लेकिन ट्राई टू डू इट। ओके, ठीक है, ट्राई टू डू इट। यस, थैंक यू। ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे मतलब का सेशन था। Very nice. Thank you. It was very, very good. वेरी गुड इंफॉर्मेशन। We'll have 5 minutes for questions. मेरा क्वेश्चन हो गया। Leela has Leena a ji. question. मेरा लीना जी, क्वेश्चन। लीना जी वांट टू। यस, आपने Leela, जो please. आपने जो एक एक्सरसाइज बताई थी ना, बॉल की, फॉर द हील्स ऑफ द फीट, I cannot, because of my knee, I cannot fold my legs. So can I do the exercise in any other position? आपने बोला ना, while standing you can stand na with the sport. Stand I can.
Yes, that I show na. Yes, you can hold the chair and put Yes. the ball down if somebody can help you. Yeah. But I did it on a marble, but you have to do on some rough surface so that ball That's वो possible. स्टेबल रहे और वो खड़े होके तो मैम और भी अच्छा है, प्रेशर अच्छा रहेगा, खड़े होके करना, Hold it. खड़े होके करना है। Yes. या नीड नॉट टू डू, वो इसलिए जो खड़े वो स्टार्टिंग में था कि बॉल अगर ये प्रेशर का इफेक्ट देगा, लेकिन आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। आप चेयर पे बैठे हो, you can put both balls, 2 balls under your both feet, and it's totally up to you how you can do it. ओके, मतलब खड़े होके नहीं, आप बैठ के भी चेयर पे कर सकते बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन आप Okay. देखिए खड़े होके प्रेशर पूरा आएगा और वो जो Pressure आईटी बैंड है ना आपका, वो स्ट्रेट है, तो वो नर्व्स में ब्रेन तक मैसेज बहुत अच्छे से जाता है अगर आप स्ट्रेट पोस्चर रखोगे। Thank you so much. It was so enjoyable. यस, वेरी Thank you. इंफॉर्मेटिव। आज हमारे मतलब का था ये। Anybody else? One more question, please. Yeah, can I ask one thing? I'm Dr. Govind. I want any exercise you can say जो बैठे बैठे गले के लिए, सर्वाइकल के लिए बेसिकली हो जाए, if डेफिनेटली possible. सर, डेफिनेटली। सबसे Maybe- पहले तो जो maybe ये that वाला we can बताया do ना that लिम्फ ड्रेन, exercise. जो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे और यहाँ करोगे टैप विद अपोजिट हैंड, यू विल फील द चेंज, यू विल फील द चेंज। Okay, okay. Very यस, इन दिस वे। और जो ऐसे करके हुक बना के था कि पीछे से लेके आ रहे हैं, इट वाज जस्ट आपकी जो नर्व्स हैं उनको भी जो इरिटेशन हुई है, इट सूट डाउन। और उसके बाद आप आइस पैक और गर्म और ठंडी पट्टी वहां लगा सकते हो उस एरिया में। और ये डेफिनेटली है, जो हुक बना के हम करते हैं ना, यहाँ से लेते हैं हम, इसका एरिया यहाँ से पूरा लिम्फ ड्रेन तो होगा ही होगा, साथ में आपकी नर्व्स हैं वो भी टोन अप होंगी और मसल्स वहां के टोन अप होंगे। तो दिस गेस्चर जो आप नेक मसाज कर रहे हो, इट विल गिव मल्टीपल इफेक्ट्स। Thank you very much. Thank Yeah. you. All right, Thank so you. this brings us to the end of the session. Thank you so very much on behalf of all of us. It was a great learning process. और आपका ये नंबर लिखा हुआ है चंडीगढ़ का, so is that the number that you will be available if anyone has a on yes, on WhatsApp you can send a message or you can send audio. क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल काउंसलिंग का भी है और मेडिटेशंस के फ्री सेशंस होते हैं, तो आई ऑलवेज रात को हमारे मेडिटेशन के फ्री सेशंस चलते हैं, मॉर्निंग में भी बुक रीडिंग चलता है। आई कीप माई सेल्फ बिजी इन दिस वे। Very nice. Okay. Thank you very much. Thank you. Now we end up. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। अभी आपने सोचा है कि भाई हम लोग पाँव किस लिए छूते हैं? कभी आपको ध्यान में आया है कि हम लोग पाँव छूते हैं वो किसके लिए होता है? तो हाँ, तो मुझे आंसर एक पुरोहित जी ने कहा था कि जो पाँव होते हैं, जो आपके पैर होते हैं, वो सबसे कम पाप करते हैं। हाँ, आपकी जुबान है ज्यादा बोल देगी, आप हाथ मारोगे किसी को, लेकिन जो आपका पाँव जो है वो सिर्फ अच्छे काम के लिए ही होता है, इसलिए पाँव छुआ जाता है। So that is quite an aside, just for the sake of completion. अभी मैं शांति पाठ का उच्चारण करूंगा। अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे, नहीं तो आप सुनिए और इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 कीजिए प्रभु त्रिभुवन में,
जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में और अग्नि पवन में, औषध वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में और जगती के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। Thank you so very much. I Thank you. declare this session closed, and we will meet with another new episode on the new month of the year, which is 1st of April. Okay? Thank you. So till then, Thank you. enjoy your. Thank you, Thank you, everyone. sir. Thank you, everyone, for joining. Thank you. Thank you very much. Thank you. Vajpayee Mahata ji, I am Kindly Surya Prakash from WhatsApp Bangalore. Dr. Gurpinder Hello. number or chat box. Anji, we'll put it onto the group chat. We'll put it. Thank you. Hello, ma'am. Thank you, Ji. Thank you. Hello, ma'am. This elder care, Samarth Elder Care. Yes, ma'am. Actually, ma'am, I want to know where is it? Ma'am, we are across Pan India. We had people from Bombay. We had people from Delhi, Gurgaon, Jodhpur. Where are you from? Is it in Noida, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Okay. Can you give You can that give me- number? You give me Yeah. your number. I will reach out to you. Okay, Give ma'am. me your number, ma'am. Thank you. Thank you. I will just give you on chat. Okay, ma'am. Thank you, everyone. We can all leave the session. Hello. The JLM is finished. I'm just taking down a number. Yes, yes, yes. I hope the session was really good. Very good, very good. Hmm. Ma'am, I have written my number down there. All right. Just All check. right, Navneet ji. Okay. Yep. Yeah, thank you. Thank you. 399-86808, right? 9839986808. Yeah. Right. I will Thank reach you, ma'am. out to you, Navneet ji. Thank you. Ma'am, if direct message phone doesn't, if you can't contact me directly, just call me on WhatsApp. Thank you, Okay, ma'am. ji. Okay, ji. Thank you, ji. Thank you. This was really, Thank really you. wonderful. Thank you. Yes. And Thank you. on Friday, we have Tambola.